Hello and welcome everyone again. Practice set exercise 1.7, exercise 1.6, exercise 1.6, the second part of 1.6, that is to show that whether the truth table has contingency or whether the truth table has uh, equivalence. So for contingency, this is your fifth question, second sum. Note this particular change. This particular change is not given to you in the textbook. आपको टेक्स्ट बुक में और दिया हुआ है, बट क्वेश्चन ये होना चाहिए, मतलब इन शॉर्ट आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन गलत है कि अगर एंड रहा तो आपको कंटीजेंसी आ सकता है और नहीं रहा तो क्या आंसर आएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। बट आपका क्वेश्चन रियल एंड वाला होना चाहिए, एंड में ऑपरेटर एंड होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। सो एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, पहले आप सिर्फ पी बनाते हो, फिर क्यू बनाते हो, फिर आप देखते हो और क्या बनाना है, नेगेशन पी बनाते हो, फिर आप पी कंडीशनल क्यू बनाते हो, फिर आप नेगेशन पी एंड क्यू बनाते हो, एंड देन यू मेक पी कंडीशनल क्यू बाय कंडीशनल negation p and q. I'll just rub it off. Negation by conditional negation p and q. Please take a note of this कि आपका क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में गलत है और की जगह ऐड है। So let's start. So here P has T. Wait a minute. Just take another pen. T T F F. Here you have T F T F. Negation P is what? The places where you write true, you have to write false, and where you have false, you have to write true. Where you will have F F T T. P conditional Q. What is P conditional Q? P conditional Q is the place where if only your second particular part of statement is false, then the whole statement is false. अगर दोनों false है तो भी true है। T की आपको T आएगा, T F आपको F आएगा, F की भी आपको T आएगा और F F भी आपको T आएगा। Negation P and Q, negation P and Q. Note this sequence. आप Q and negation P नहीं करोगे, negation P and Q करोगे। F और T आपको F आएगा, F और F आपको F आएगा, T और T आपको T आएगा और T और F आपको F आएगा, मतलब T एंड बाय कंडीशनल है। बाय कंडीशनल है मतलब क्या? अगर दोनों में से कोई भी एक फॉल्स रहा तो फॉल्स, और दोनों फॉल्स रहा तो ट्रू। T and F you will have F, yes, F and F you will have T, T and T you will have T, T and F you will have F. कंडीशन कंटीजेंसी का मैंने आपको कंडीशन बताया था। What was the condition? The condition was that your particular last truth table should have both false statement and true statement in it. आपके लास्ट टेबल ट्रूथ टेबल में लास्ट ट्रूथ टेबल की सारी एंट्रीज या तो फॉल्स है या तो ट्रू है, या ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रू है सिर्फ फॉल्स है, दोनों है। इसलिए आपका स्टेटमेंट आएगा सिंस द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम आर नीदर ट्रू नॉर फॉल्स, देयरफॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ contingency. Take a good look at this one. Next sum is based on three statements. जैसे कि आपने पिछले एक्सरसाइज में सुना था कि अगर दो स्टेटमेंट्स होते हैं तो चार आउटकम्स, चार एंट्रीज निकलती है। अगर तीन स्टेटमेंट्स होंगे तो आठ एंट्रीज निकलेगी। आठ एंट्रीज निकलेगी मतलब आपको 8 लाइन मिलेगी ट्रूथ टेबल में। पहले तो आप लिखो P P, Q and R. I hope it's visible on the board. Yes, it is. फिर आप निकालोगे P and Q, फिर आप निकालोगे P and R, then you will have P and Q, conditional P and R.
सो आप पहले क्या करते थे, 2 रहता था तो 2 है, यहाँ पे 8 है तो पहले 4 F. Let me just check if the table is full. Okay, it is. I'm sorry for making it a bit curvy, but यहाँ पे रूल्स के मैं अप्लाई करने जाऊँगा तो बहुत टाइम चला जाएगा. Here you will have 2t, 2f, 2t, 2f. Here you will have only 1t, 1f, 1t, 1f, 1t, 1f, 1t, 1f. Please don't make it a tube. P and Q, this one and this one. T and T is T. T and T is T. T and F is F. T and F is F. F and T is again F. F and T is again F. And F and F is again F. F and F is again F. So next you have P and R. P and T is T. T and T is T. Okay, T and T is T. T and F is F. Sorry. T and T is T. T and F is F. F and T is F. F and F is F. F and T is F. And F and F is F. Please take care of the objectives. कहाँ पे T है, कहाँ पे and है, कहाँ पे or है, कहाँ पे conditional है, कहाँ पे biconditional है. Now here you have conditional. Conditional में again मैं आपको बता दूँ, conditional में अगर आपका second statement false है तो ही आपका false है, पर अगर दोनों statement false है तो आपका true है. True conditional true gives you true. True conditional F gives you F. F conditional T gives you T. F and F 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 gives you T. So if you see here, आपके जो 8 आउटकम्स थे, 8 आउटकम्स में से आपका जितना भी था वो सब आपका sorry my question wrong here. I'm really sorry. The last operative is P and Q and P conditional. Okay. Sorry for this inconvenience. यहाँ पे P conditional Q and P conditional R है. So here you will have P conditional Q. Here again you will have P conditional Q, and here you will have conditional. Here also you will have conditional. Here you will have R. I'm really very sorry for this. I misread it. So the whole truth table gets changed. So here you have P conditional Q. कंडीशनल में मैंने अभी आपको स्टेटमेंट अभी आपको एक बताई कि जितना सेकेंड लेटर वाला F होगा वो सब फॉल्स होगा. तो ट्रू कंडीशनल ट्रू गिव्स यू ट्रू. ट्रू कंडीशनल ट्रू गिव्स यू ट्रू. ट्रू एंड F false gives you false. True and false gives you false. False and true gives you true. False and true gives you true. False and false gives you true. False and false gives you true. ये दो कॉलम जो थे उसमें आपने किया. अभी आपको फर्स्ट और थर्ड कॉलम पे करना है. True and true gives you true. True and false gives you false. True and true gives you true. Let me just make it clear. मैं सिर्फ आपके true and true इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंडीशनल बोलते बोलते टाइम लग जाएगा. True conditional false gives you false. False conditional true gives you true. False conditional false gives you true. False conditional true gives you true. False conditional false gives you true. इतना भी नहीं लगा, sorry. True and true gives you true. True and false gives you false. False and true gives you false. False and false gives you false. True and true gives you true. 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 If you see here, you have 3 false statements and rest of the statements are true. So it is neither false nor true. So therefore the above statement is a contingency. Everybody look at this one. 6th question, third question that we have is negation of P conditional negation Q is equal to P and negation of negation Q is equal to P and Q.
व्हाट इज इक्विवेलेंस? इक्विवेलेंस मैंने आपको बताया, इक्विवेलेंस इज नथिंग बट योर पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स विच हैव द लास्ट एंट्रीज। जैसे आप कंटीन्यूसी कॉन्ट्रडिक्शन डिटेक्ट कर रहे थे, तो उसकी जो लास्ट एंट्री होती है, उसका जो लास्ट स्टेटमेंट का जो कॉलम होता है ट्रूथ टेबल का, अगर वो दोनों इक्वल आ गया, दोनों अगर ट्रू 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 है, दोनों अगर फॉल्स 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 है, तो वो आपका आपका पर्टिकुलर इक्विवेलेंस जनरेट करता है कि ट्रूथ टेबल में आपके दोनों स्टेटमेंट्स की एंट्रीज अगर सेम आ गई तो वो इक्विवेलेंट है। स्टेटमेंट क्या है? इक्विवेलेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। अभी आपको देखना है यहाँ पे क्या क्या है। पहले तो P है, दूसरा दूसरा आपका Q है, तीसरा आपका नेगेशन भी Q है, नेगेशन Q, फिर आपका नेगेशन ऑफ नेगेशन Q भी है, नेगेशन ऑफ नेगेशन Q, फिर आपका है P कंडीशनल नेगेशन Q, फिर आपका है नेगेशन ऑफ P कंडीशनल negation Q. Then you have P and negation of negation Q and P and Q. I hope it's visible on the board. Yes, it is. दो ही स्टेटमेंट है तो आपके चार एंट्रीज बनेंगे. So what you will have here is that first you will see true, true, false, false. ये आपका बेसिक है कि आप चार से एंट्रीज जो है नॉर्मल स्टेटमेंट्स की पहले लिखते हो, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. नेगेशन ऑफ क्यू इज व्हाट? फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू. इसका ही नेगेशन आपका आएगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. पी कंडीशनल नेगेशन क्यू, दिस वन एंड दिस वन. कंडीशनल में आपका सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स रहा तो फॉल्स, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स रहा तो ट्रू. टी एंड एफ गिव्स यू एफ, टी एंड टी गिव्स यू टी, एफ एंड एफ गिव्स यू टी, एफ एंड टी गिव्स यू टी. तो इसका आपको याद, नेगेशन ऑफ दिस विल बी टी एफ एफ एफ. देन यू हैव पी एंड नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू, पी एंड नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू. एंड है आपका T and T gives you T, T and F gives you F, F and T gives you F, F and F gives you F. Then you have P and Q, सिर्फ P and Q, this one. T and T gives you T, ये तो सिंपल हो गया. T and F gives you F, F and T gives you F, and F and F gives you F. If you make this as a number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, you can write that in column 6, 7 and 8 all entries are same. मतलब क्या हुआ आपका कि 6, 7 और 8 कॉलम में आपकी सारी एंट्रीज क्या है? सेम है. जहां जहां ट्रू फर्स्ट वाले में है वही ट्रू 7th और 8th वाले में भी है. सो इफ यू सी हियर you will get the answer as, you will get the answer that आपके सारे स्टेटमेंट सेम है, आर सेम, और you can write that is identical. Therefore negation of P conditional negation Q is equal to P and negation of negation Q is equal to P and Q. Now you get what is equivalence. इसके बाद हम एक लास्ट सम, एक सेकेंड लास्ट सम करेंगे. Let's pause it. Next question, your 6 questions. 4th question, negation of P or Q or negation of P and Q is equal to negation of P. Again you make first P, then Q, then you make P, then you will make negation of P, then you will make P or Q,
then you will make negation of P or Q, then you will make negation of P and Q, and in the last you will make negation of P or Q or negation of P and Q. Let's start. E, E, F, F, T, F, T, F, 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 T, T. आई होप आप लोगों को समझ रहा होगा क्योंकि मैं अभी इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा हूँ. पी और क्यू पे आपका ये आएगा टी 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 एफ. जहाँ जहाँ पे एक ट्रू रहता है वहाँ पे सब ट्रू, जहाँ पे दोनों फॉल्स वहाँ पे फॉल्स. नेगेशन ऑफ दिस वन विल बी एफ 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 टी. नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू. Negation of P and Q. Negation of P and Q. F and T. F. F and F. F. T and T. T. T and F. F. अब आपको वो निकालना है इन दोनों का और करना है. F and F gives you F. F or F gives you F. F or F gives you F. F and F or T gives you T. T or F gives you T. Naming this, numbering this particular columns 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So if you see here, आपको ये कॉलम और ये कॉलम इक्वल आ रहा है. दैट इज आपके क्वेश्चन के हिसाब से आपको कॉलम इक्वल आ रहा है. सो इफ यू सी हियर, यहाँ पे भी दोनों एफ दोनों टी, वहाँ पे भी दोनों एफ दोनों टी. व्हाट यू विल राइट, सिंस कॉलम नंबर 3 and column number 7 are identical, column number 3 and column number 7 are same or या तो फिर identical, therefore negation of P or Q or negation of P and Q is equal to negation of P. We'll move forward to the last questions. P conditional, biconditional Q and Q conditional, P conditional Q and Q conditional P. 7th क्वेश्चन इज नथिंग डिफरेंट, सीरियसली नथिंग डिफरेंट. उसमें बस आपको पिछले 6th वाले क्वेश्चन में यू हैड टू वेरीफाई वेदर दे आर इक्वल और नॉट. इसमें आपको दिया है कि प्लीज सी टू इट दैट इफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज इक्वल टू दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट और. यहाँ पे इज इक्वल टू की जगह सिर्फ एंड डाला है. नथिंग टू गेट कंफ्यूज्ड अबाउट, नथिंग टू गेट अ बिट हेजी अबाउट. सो लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, बिकॉज बाकी सब सम सेम है. अगर आपको कुछ डाउट है तो व्हाट्सएप या कमेंट सेक्शन में पूछो. इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट इट, इफ यू वांट टू सी द रिड्यूस्ड पोर्शन ऑफ इट, ट्राई टू कॉन्टैक्ट अस. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट यू हैव P, second you have Q. P, Q, then you will find out P conditional, biconditional Q, then you will find out P conditional Q, then you will find out Q conditional P, then you will find out P conditional Q and Q conditional P. Get it? You will give this as 1, 2, 3, 4, 5, 6. आपको ये कॉलम और ये कॉलम सिमिलर आना चाहिए. T, T, F, F, T, F, T, F. बाय कंडीशनल है तो जैसे मैंने आपको बताया कोई भी एक सम फॉल्स रहा तो फॉल्स रहता है, पर दोनों फॉल्स रहा तो ट्रू रहेगा. ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स आल्सो ट्रू, बट दिस बोथ विल बी फॉल्स एंड फॉल्स, क्योंकि दोनों में से कोई एक फॉल्स है ही. और दोनों ट्रू दोनों फॉल्स आए तो ट्रू ही आएगा. पी कंडीशनल क्यू इज कि आपका सेकेंड वाला फॉल्स रहा तो ही फॉल्स होगा, और आपका टी और एफ आएगा, बाकी सब ट्रू आएगा. अभी क्या होगा, क्यू कंडीशनल पी मतलब क्या, सीक्वेंस चेंज होगा. आपको यहाँ से यहाँ जाना है. ट्रू और ट्रू कंडीशनल ट्रू गिव्स यू ट्रू, एफ एंड टी गिव्स यू टी, टी एंड एफ गिव्स यू एफ, एंड एफ एंड एफ गिव्स यू टी. प्लीज मेक अ नोट कि जब आप क्यू कंडीशनल पी कर रहे हो तो आप यहाँ से यहाँ कंडीशन जा रही है. जब आप पी कंडीशनल कर रहे हो तो यहाँ से यहाँ जा रही है, तो ये आपका सेकेंड एफ है. जब यहाँ से यहाँ जा रहा है तो ये आपका सेकेंड एफ है. इसलिए जब पी कंडीशनल क्यू में था तो आपका सेकेंड कॉलम में
सेकेंड वाले रो में फॉल्स आया, पर जब क्यू कंडीशनल की कर रहे हो आपका थर्ड रो में फॉल्स आया। यू हैव एंड ट्रू एंड ट्रू गिव्स यू ट्रू, एफ एंड टी गिव्स यू एफ, E and F gives you F, E and D gives you T. Again, you see here, you will write in particular truth table, column number 3 and column number 6 are identical or same. Therefore, your P conditional Q is equal to P biconditional Q is equal to P conditional Q and Q conditional P. This is the end of practice set 1.6. Practice set 1.7 is a bit lengthy and also not difficult but quite tricky to understand. So आप जितना भी अभी प्रीवियस लेक्चर हुआ है उसको ढंग से पढ़ो, उसको याद रखो इन द सेंस उसको समझ लो, ताकि आपको रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि ये सब जितने भी आपको अभी 12th में 11th में जितना मैथ्स है वो सब रट्टा मारने लायक नहीं है। वो सब एक कोई पैटर्न बेस्ड नहीं है, हर एक क्वेश्चन अलग डिसीजन देता है, हर एक क्वेश्चन अलग कंडीशन देता है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ट्राई टू नॉट मेमोराइज इट। एंड सॉरी फॉर टुडेज लेक्चर बिकॉज आई वोर अ कैप, बिकॉज मेरे पास और कोई चारा नहीं था। सो I know it's kind of a bit unprofessional, but please bear this one time and take care, stay home and stay safe.